नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू द टॉक ऑन ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग हमेशा बहुत चिंतित रहते हैं एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फील दैट वी आर कैरिंग मच मोर कोलेस्ट्रॉल देन व्हाट वी शुड बी कैरिंग. We are worried whether we are going to get a heart attack because of it. We are worried whether we should be on medications because of it. We are worried whether we should be eating low fat items because of it. We are worried that should we move from regular milk to skim milk, blah 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 blah. The list is endless. But a lot of times we don't even know what cholesterol is all about. तो आज का lesson number 1, first I'm going to tell you what cholesterol is all about. Just 1 second. ठीक है. So cholesterol जो है, a lot of times we feel that cholesterol is just fat. Because every time that we do a blood test, this cholesterol report comes under the name of लिपिड प्रोफाइल. और लिपिड मतलब बेसिकली फैट, इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि अगर जब हम मोटे होते हैं तभी हमको कोलेस्ट्रॉल होएगा, पर पतले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है. बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज नॉट जस्ट फैट, कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली अ स्टेरॉल. अगर आपको आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर याद हो तो ऑल राइट. सो इट इज़ अ स्टेरॉल एंड इट इज एक्चुअली कॉल्ड, उसका जो असली में नाम है, इट इज कॉल्ड एज अ लिपोप्रोटीन. तो ये 2 पार्ट में बना हुआ रहता है. लिपो या लाइपो मतलब फैट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, द बेसिस ऑफ विच इज अमाइनो एसिड्स एंड स्टफ. ऑल राइट. सो कोलेस्ट्रॉल 2 चीज़ों से बनता है, फैट और प्रोटीन. उसके वजह से विद इन कोलेस्ट्रॉल वी टिपिकली हैव थिंग्स कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल. ये हम लोग लार्जली इनके नाम ऐसे ले लेते हैं. बट व्हाट डज दिस रियली मीन? सो HDL या जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल करके बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है. अगेन आई एम नाउ गोइंग टू बी ड्रॉइंग डायग्राम्स फॉर representational purposes only. तो ताकि आप समझ पाए कि ये मॉलिक्यूल कैसा दिखता है. ये रिप्रेजेंटेशन है, असली में मॉलिक्यूल अलग दिखेगा. बट थिंक ऑफ दिस एज द प्रोटीन पार्ट एंड थिंक ऑफ दिस एज द फैट पार्ट. कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल है उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है और फैट कम रहता है, इसलिए this has a heart protecting effect because it's more protein, it's less fat. LDL जो है इसमें फैट ज़्यादा रहता है और प्रोटीन कम रहता है, इसीलिए दिस इज टिपिकली कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल. बट वी आर नाउ डिस्कवरिंग दैट it is not as bad as we made it out to be. That LDL also plays many roles, starting from making your hormones to synthesizing your vitamin D to being a part of antioxidants like CQ10, which a lot of heart patients are asked to take, and also in delivery of it helps you in creating energy. So LDL also has a whole lot of functions. So ये अभी तक हम लोग जो बोल रहे थे बैड कोलेस्ट्रॉल, it's not really bad at all. All right. And then there is what is called as VLDL, which is then we typically called as very bad cholesterol. So इसमें you have more fat and very less protein. सो जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे जैसे प्रोटीन की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, which is why it could be responsible in causing diseases and stuff like that. So more the amount of protein in the molecule, the more the density, which is why it's called as HDL, high density lipoprotein, low density lipoprotein, very low density lipoprotein. So the first lesson that you must remember is that cholesterol is not a fat, it is a molecule which has both fat and protein. This is your lesson number 1.
Lesson number 2, though LDL is called as bad cholesterol, it's not all that bad. It does play many functions, from vitamin D to hormones to antioxidants to production of energy. So what do we then need to know now? There is one more that one more lesson, or not one more lesson, but one more thing that gets assessed every time you do a lipid profile test. उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स. सो ट्राइग्लिसराइड्स जो है, ये आप सोच सकते हो ये है आपके प्योरली फैट का मॉलिक्यूल, बिकॉज दिस इज वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. Don't ask me what this is. You should have paid attention when your classes were going on. 11th and 12th standard का chemistry classes है ये. ग्लिसरॉल एक करके एक मॉलिक्यूल रहता है, बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल रहता है, और इसके साथ होता है 1, 2, 3 फैटी एसिड्स. सो 3 फैटी एसिड्स मतलब 3 मॉलिक्यूल फैट के जब एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से अटैच हो जाते हैं तो इट इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड. 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट इज फैट जो हमारे बॉडी में है, ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हमारे बॉडी में घूमता रहता है, ऑफ कोर्स इन आवर ब्लड स्ट्रीम. Triglycerides are also something which work at depositing fat in your liver, which is why a whole lot of people with fatty liver will also have cholesterol issues, or they will have high triglycerides and stuff like that. So but triglycerides also carry out the function of taking fat from your adipose tissue, मतलब आपके fat tissue से, and then take it into your working tissue which is your muscle cell. और फिर वहाँ पे ये जो 3 फैटी एसिड्स है ये ब्रेक डाउन होते हैं आपके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड टू एंश्योर दैट यू कैन कीप एक्सरसाइजिंग. सो that is really triglyceride. Now a lot of times when we see our cholesterol report, it kind of just throws us off because we feel that we are very high on cholesterol. So this is what you should know now: HDL, LDL, VLDL and triglycerides. What are your ideal levels? On an ideal level, you need your HDL to be 50 and above. You need your LDL to be somewhere, the lower the better, but अगर 100 or 150 के भी तरफ हो तो भी it is okay. You need VLDL ideally 25 and under. And you should have your triglycerides somewhere around, 150 is the standard marker, पर आपका जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है. Now, what happens when you exercise regularly? And this is where I'm going to talk to you about the athlete's paradox, because a lot of people have had a question कि मैं regularly exercise करती हूँ फिर भी मेरा total cholesterol ज़्यादा क्यों है. तो total cholesterol में क्या करते हैं, that all these 3 are counted and then you're supposed to be under the 200 mark. Now with people who are exercising regularly, उनका HDL ज़्यादा होने के वजह से they may not always be under the 200 mark. But the thing with people who are exercising is that they will have their HDL at around 50. Then they will have their triglycerides somewhere between 50 to 80. They will have their VLDL somewhere around 15 to 20. And then the LDL tends to be a little high. By that little high I mean that it could be around 100, 125. If your profile is looking like this, जहाँ पर आपका HDL 50 के ऊपर है, जहाँ पे आपका ट्राइग्लिसराइड डबल डिजिट्स में है, सिंगल डिजिट में नहीं है, लेकिन अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई दिखा रहा है, then you don't need to worry about it. This is typically how a regular person who works out, उनका lipid profile ऐसा ही दिखता है. This is a workout effect. This is not about you putting your heart at any kind of a risk. Okay? However, if you have HDL which is in the range of 30 to 35, if your triglyceride is 150 and above, if your VLDL is 30 and above,
and then your total cholesterol is off, then you need to do something about it. What is that something? I'm going to talk to you about it, but this is something that everyone can follow, whether you have high cholesterol, whether you have low cholesterol, whether you have no cholesterol problem, whether you have diabetes, heart disease, liver issues, everything. All right. Now, what is that something that you can do? First of all, you must know that what we are trying to do, that the way to cut down your risk to the heart is to ensure that HDL levels climb and triglyceride and VLDL levels climb down. बहुत लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है उनको डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब ट्राइग्लिसराइड और VLDL जब बढ़ता है तब बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस भी प्रॉब्लम, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी भी प्रॉब्लम में आ जाता है. यू माइट गेट इंसुलिन रेजिस्टेंट, एंड इफ यू गेट इंसुलिन रेजिस्टेंट इन द लॉन्ग रन यू विल ऑल्सो डेवलप डायबिटीज़. इसीलिए बहुत लोगों को कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम रहता है, डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम रहता है, बीपी का भी प्रॉब्लम रहता है, सब कुछ एक साथ चलता है. बट वॉट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव? दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव. HDL चढ़े, ट्राइग्लिसराइड और VLDL घटे. नाउ एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू इज टुवर्ड्स दिस. ऑल राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्या? यू नो, डज फूड अफेक्ट कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल रियली? मतलब फैटी फूड खा के. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फैटी फूड, यू हैव टू स्प्लिट इट इन टू पार्ट्स: natural fatty food and unnatural or packaged. दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इट. नाउ जो भी नेचुरल फैट रहता है, मतलब अगर आप दूध पी रहे हो तो उसमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल रहेगा, अगर आप अंडा खा रहे हो तो उसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल रहेगा, अगर आप प्रॉन्स, ऑयस्टर, रेड मीट ये सब खा रहे हो उसमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल रहेगा. यू डोंट नीड टू वरी सो मच अबाउट इट एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग अकॉर्डिंग टू योर ग्रैंड मदर. अकॉर्डिंग टू योर ग्रैंड मदर मतलब क्या कि अगर अंडा खा रहे हो तो पूरा अंडा खाओ, पीला ज़रूर खाओ. You don't need to worry about removing the yellow and eating the white. That is not going to help you improve your HDL levels and decrease your triglyceride and VLDL level. That is not going to help you do it. So you eat the full egg, but एक या दो ही अंडे खाओ. ऐसा एंडलेसली अंडे मत खाओ. अगर मीट खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, हफ्ते में 2 से मैक्सिमम 3 बार खाओ, हर रोज मत खाओ. सो जस्ट डू योर बेसिक. दैट्स द थिंग. नाउ अबाउट नट्स, यू नो, पीनट्स, कैशू, कोकोनट, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए. क्या लगता है आपको? इसका आंसर क्या है कि ये आपको अवॉइड करना चाहिए या नहीं अवॉइड करना चाहिए? So wait, I'll tell you. The answer to this is that you don't have to avoid these. These are natural foods. These are vegetarian in nature, and most importantly, these are zero in cholesterol. हाँ, इसमें zero cholesterol है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आप पीनट्स, कैशूज़, कोकोनट आराम से खा सकते हो. प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग पीनट्स और कैशूज़ खाते हैं तो मोस्टली हम लोग उसको चकना आइटम करके खाते हैं. चकना आइटम मतलब ऐसा आइटम जो कि दारू के पहले आप पीते हो, खाते हो. तो जो दारू है, दैट इज़ वॉट इज़ पुटिंग योर हार्ट एट अ रिस्क. मतलब क्या? दैट ड्रिंकिंग एल्कोहल विल डिक्रीज HDL and it will increase triglyceride levels. This puts your heart at a risk. Not eating cashews and peanuts and stuff. तो क्या करे? दारू छोड़े. Okay, so you need to watch out for alcohol. I almost never see people with cholesterol issues worried about alcohol. I see them worried about peanuts, cashews and coconut. This is not something that you should worry about. Please eat this. Each one of them is nutritious, and there is enough info about them in my book, Indian Superfoods. All right. The other thing that people tend to do is switch to चकना आइटम के लिए ही वापस, या फिर कभी कभी नाश्ते में भी
एयर फ्राई के डीप फ्राइड इज अ प्रॉब्लम, डीप फ्राइड से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एयर फ्राइंग करेंगे. सो देखो अगेन, एयर फ्राई इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इंक्रीज योर HDL और डिक्रीज योर LDL. इन फैक्ट इट इज गोइंग टू गिव यू अ फेक फीलिंग दैट दिस फूड इज एक्चुअली वेरी हेल्दी. तो उससे अच्छा क्या है दैट यू कीप इट रियल. पकोड़े खाओ, भजिया खाओ, समोसे खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन मात्रा में खाओ. डोंट ईट इट बिकॉज यू आर बोर्ड. मात्रा में खाओ मतलब क्या, दैट इट्स वेरी सिंपल कि अगर इफ यू आर ईटिंग भजिया या यू आर ईटिंग अ समोसा या यू आर ईटिंग अ पकोड़ा, प्लीज हैव देम डीप फ्राइड एंड प्लीज यहाँ आने के पहले रुक जाओ. दैट्स ऑल that you really have to do. So with my clients what we typically do is that we split the entire year. देखो साल में 365 days होते हैं. 300 दिन अगर आप रेगुलर खाना खाते हो, रेगुलर खाना मतलब PBAB, मतलब इन मराठी पोड़ी भाजी आमटी भात, या इन हिंदी यू कैन कॉल इट एज RSDC, रोटी सब्जी दाल चावल, तो देन यू आर फाइन. 60 दिन साल के, यू नो, कभी किसी की शादी है, कभी दिवाली है, कभी दसरा है, कभी व्हाटएवर अदर फेस्टिवल है, अब मैं वेकेशन पे हूँ, मेरी फेवरेट कजिन आई हैं, जो भी आप कर रहे हो, ऑन दोज डेज इफ यू ईट स्टफ विच इज़ अ लिटिल ऑफ बट जिसके नेचुरल रेसिपी में डीप फ्राइंग है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म योर बॉडी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म योर हार्ट. सो प्लीज़ बिंदास खाओ, लेकिन 300 दिन साल के डिसिप्लिन में रेगुलर खाना खाओ. नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि 300 दिन हम लोग थोड़ा लफड़ा करते रहते हैं अपने डाइट में, और उसी के वजह से अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है. और जो 50 या 60 दिन हमको खुली तरीके से जीने चाहिए वो भी हम लोग नहीं करते हैं. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू विथ योर फूड्स. अभी ऑयल का भी बहुत बड़ा अभी ऑयल का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम लोग ऑयल कौन सा यूज़ करें. ऑलराइट, तो ऑयल जो है आप आपके रीजन के हिसाब से आप यूज़ करो. सो इफ़ यू आर इन द वेस्ट एंड इन द साउथ ऑफ इंडिया, groundnut oil. If you are in the east and northeast of India, also parts of north, then mustard oil. And if you are in Kerala, then coconut oil. This is the oil that you should be using in your cooking. A lot of people switch to sesame oil in winters, so you can आराम से switch to that. Lot of oils sell themselves as low on cholesterol because of the seeds that they are using. So what you must remember is that अगर आप कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हो, फिर वो कनोला का हो, राइस ब्रांड का हो, सनफ्लावर का हो, सैफफ्लावर का हो, या किसी का भी हो, अगर उसका मेन सोर्स वेजिटेरियन है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं. तो फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल का जो ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, दैट इज़ जस्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस एज यूजुअल. ये जो आपके कच्चे घानी के ऑयल्स है विच अर्लियर वी वर बाइंग यू नो फ्रॉम लोकल वेंडर्स, did not have any cholesterol to begin with. So that's very important to remember this. Now what do I really mean by unnatural fat? What I mean by unnatural fat is that ऐसी चीज़ जिसमें फैट है पर आपने उसमें से फैट निकाल के उसको लो फैट कर दिया, जैसे कि लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, लो फैट आइसक्रीम. याद रखिए, दीज आर नॉट गोइंग टू बी गुड और एनी बेटर फॉर योर हार्ट. इनफैक्ट जितना खाना आप ज़्यादा प्रोसेस करते हो उतना उसमें प्रॉब्लम होने लगता है. द मोर यू प्रोसेस योर फूड, the more you are at a risk of increasing your triglycerides and decreasing your HDL levels, because the more you begin to eat unhealthily. ठीक है, फिर और कौन से चीज़ में फैट रहता है पर हम निकाल देते हैं, वही जैसे कि अंडा.
eating only egg white in the hope that you are then eating low fat, eating only air fried in the hope that you are then only eating low fat. तो ये सब कुछ नहीं चलेगा. थिंकिंग के खाली आमंड और पिस्ता में गुड फैट है और कैशू में बैड फैट है, वो भी नहीं चलेगा. हर एक नट एक ही समान है, उसे खाइए, चकना की तरह मत खाइए. यू कैन हैव इट इन पार्ट ऑफ योर हलवाज एंड लड्डूज एंड वेक अप टू इट इन द मॉर्निंग एंड हैव इट एज अ मिड मील. यू कैन वेरी मच स्विच टू हैविंग पीनट्स विथ योर चाय. सो दैट्स वॉट यू नीड टू रिमेंबर. Now about exercise, a lot of people are like ever confused about exercise. I actually had questions which said कि exercise किए बगैर हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं क्या? So the answer is no. See, you must remember, eating fat doesn't put you at a risk of developing high cholesterol levels. What actually puts you at a risk of developing high cholesterol levels is inactivity or lack of exercise, smoking, of course, alcohol, certain genetic factors, age, and even gender. And being on diets जहाँ पर sometimes you will just remove fat from your diet, sometimes you will just remove carbs from your diets. कभी कभी आप फास्टिंग करोगे और 14-14, 16-16 घंटे कुछ नहीं खाओगे और फिर से जब खाओगे यू विल ईट अ वेरी बिग मील. ये अगर आप करते रहोगे, मतलब बेसिकली बिग मील इज़ नॉट द थिंग. फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो पब्लिक करता है, तो ये सब में क्या होता है कि जब आप फैट निकालोगे अपने डाइट से या कार्ब्स निकालोगे या इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे, ये ट्राइग्लिसराइड की लेवल आपकी बढ़ती ही जाएगी और HDL लेवल आपकी घटती जाएगी. बेसिकली योर लिपिड प्रोफाइल विल गो फॉर अ टॉस. तो व्हाट शुड यू डू? वेल, you just need to come to what is called as the madhyama marg. Eat properly मतलब सीजन में खाओ, किचन से खाओ, टाइम पे खाओ, लंबे लंबे समय तक भूखे मत रहो. बिकॉज cholesterol and heart disease is not linked to weight or how you are looking, but it is actually linked to what you look like from inside. So this is a concept I have told you earlier. मैं सिर्फ आपके लिए वापस रिवाइज कर रही हूँ. जब आप एक्सट्रीम डाइटिंग करके बाहर से पतले हो जाते हो तो भी आप अंदर से फैट रहने के रिस्क में रहते हो. दैट इज कॉल्ड एज TOFI, मतलब थिन आउटसाइड फैट इनसाइड. और उसके वजह से बहुत लोग डाइटिंग के बाद में हार्ट के बीमारी के शिकार हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल who are fat outside but thin inside, मतलब वो बाहर से भले ही बहुत दुबले पतले ना दिखे, तंदुरुस्त दिखे, लेकिन अंदर से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल, उनका लिवर फैट, सब कुछ मात्रा और बैलेंस्ड में रहता है. Finally, what looks good on us is that we are not putting our family under stress because of our health. How do we do that? We do that by not obsessing about what we are looking like on the outside. अब बाहर से थिन हो या बाहर से फैट हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर आप अंदर से फैट हो या अंदर से थिन हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. आपके एनर्जी लेवल्स में, आपके लुक्स में, आपके मूड्स में, आपके प्रोडक्टिविटी में, आपके लेंथ ऑफ लाइफ में, आपके मेडिसिन के खर्चे पे, आपके स्ट्रेस पे, सब पे. ओके, सो नाउ फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू लुक लाइक ऑन द इनसाइड. छोड़ो ये ऑब्सेशन ऑन व्हाट यू लुक लाइक ऑन द आउटसाइड. और जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी के सब लोग मेरे को बोलते रहते हैं कि तू थोड़ी मोटी हो गई है, तू थोड़ी मोटी हो गई है, तो उनको बोलो कि तुम अपने आईज में एक थिन का लेंस लगा लो. अपने को काय को पतला होने का है. वो लोग को अगर हम लोग मोटे लग रहे हैं तो वो लोग, they should change their vision. You focus on being thin inside instead of being thin on the outside. Okay, so eat normally. तो खाने में आपको क्या करना है? कुछ भी प्रोसेस नहीं खाना है, कुछ भी लो फैट नहीं खाना है, कुछ भी एयर फ्राइड करके नहीं खाना है. आपके जो रीजन के जो ऑयल्स है उन्हीं के हिसाब से आपकी रेसिपीज बनी हुई हैं. फिर वो चाहे कड़ी पकोड़े की रेसिपी हो या फिर नॉर्मल भिंडी भाजी की रेसिपी हो या फिर आलू की रेसिपी हो या दाल की रेसिपी हो, ऑल ऑफ देम आर फाइनली ट्यून्ड
to the smoking point of the oil of your region. So go back to that oil and eat your food like the way you're normally meant to eat it. पैकेट में से मत खाओ. जितना आप पैकेट में से खाओगे, the more you eat out of packets. मतलब क्या? The more you eat juices, the more you eat cereals and biscuits and chocolates and chips and stuff, even if they're low fat chips, even if they're baked chips, even if they're whatever chips, the more you increase your chances of having a lipid profile which is completely off and developing heart diseases. So पैकेट में से मत खाइए. याद रखिए, जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है. So this is all about food. This is really a master class, unending. Now about exercise. Exercise आपको करनी ही है 3 hours per week. This is how much you need to exercise. फिर चाहे आप आधा घंटा हर रोज करो या 1 घंटा एवरी ऑल्टरनेट करो. This is the minimum requirement to ensure that your heart is in a good place, your cholesterol, your triglycerides, your blood sugar, everything is in a good place. अभी इसमें योगा आपको करना ही है. वॉकिंग, साइकिलिंग ये भी आप कर ही सकते हो. बट वॉट यू मस्ट एंश्योर दैट यू आर डूइंग इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिम में जाके ट्रेन करना, इसमें जो है यू गेट समथिंग कॉल्ड एज आफ्टर बर्न. आफ्टर बर्न मतलब एक्सरसाइज करने के वजह से अगले 48 आवर्स तक आपकी बॉडी फैट ज़्यादा यूटिलाइज करती है. व्हेन दिस हैपन्स, it immediately helps you lower your triglyceride levels, it immediately helps you lower your VLDL levels, and it immediately begins to help you increase your HDL levels. So strength training you must do minimum 1 time a week and optimally 2 times a week. ओके, सो ये भी आप आपके रूटीन में लेके आइए. एंड लास्टली द थिंग दैट ऑल्सो अफेक्ट्स कोलेस्ट्रॉल, विच इज़ वाई पीपल से स्ट्रेस के वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है क्या? तो येस, 100%. जब हमको स्ट्रेस होता है तब हमारी नींद उड़ जाती है. जब और अगर हमने नींद उड़ा दी by watching too much Netflix, by chatting with people on our phone, by watching things on iPad, by stalking our exes on Instagram, तो फिर हम लोग की नींद उड़ जाती है. जब नींद उड़ती है तब वापस ट्राइग्लिसराइड अप, HDL डाउन, हार्ट एट अ रिस्क, इवन लिवर एट अ रिस्क, सब कुछ चला जाता है और हमारा डी स्ट्रेसिंग का जो एक नेचुरल एबिलिटी रहता है वो भी चला ही जाता है. तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये अभी तक किसी ने पिल में डाल के बेचा नहीं तो बहुत अच्छा बिजनेस बनता था इसका. तो टाइम पे सोइए. व्हाट इज़ अ गुड टाइम टू स्लीप? एनीवेयर बिटवीन 9:30 to 10:30 in the night is a good time to sleep, and wake up anywhere between 5 to 7 every morning. That is also a good time to wake up. So food, exercise and sleep and some education that cholesterol is not some useless molecule. It has a lot of functions to play in our body, and it's really not as simple as it's made out to be कि खाली फैट बंद करो. क्या हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल के मिथ्स के वजह से हमने हमारे अच्छे फैट्स सारे खाने बंद कर दिए. हमने घी बंद कर दिया, हमने पराठे के साथ मलाई खाना बंद कर दिया, हमने भाकरी, थाली पीठ, कोकी के साथ मक्खन खाना बंद कर दिया. जब हम नेचुरल अच्छे फैट के सोर्सेस हमारे डाइट में से बंद कर देते हैं तो विटामिन डी कम होने लगता है. जब विटामिन डी कम होने लगता है तो थायराइड जैसा फंक्शन करना चाहिए वैसे फंक्शन नहीं करता है. कोलेस्ट्रॉल भी जैसे फंक्शन करना चाहिए वैसे फंक्शन नहीं करता है. और फिर हमारे हार्ट को, हमारे लिवर को, इनफैक्ट इवन हमारे पीरियड्स या फर्टिलिटी को बहुत सारा फ़र्क पड़ता है. मतलब वी मेक मेजर कॉम्प्रोमाइजेस ऑन आवर हार्ट हेल्थ, ऑन आवर लिवर हेल्थ एंड ऑन आवर फर्टिलिटी. सो इट्स रियली अबाउट गोइंग बैक टू बेसिक्स विथ योर फूड, not worrying so much about your total cholesterol levels. Worry much more about keeping your HDL high and keeping your triglycerides low. And you really don't have to do anything out of the world to do this. You just need to do your basics
but you need to do your basics with food, diet and sleep every single day. That's all that really matters. Now, you know, we have featured a few doctors on our Insta series. If you would like to see what they have had to say about heart or liver health, because cholesterol और triglyceride के वजह से ये दोनों organs में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, I will also be putting this up on my story. So there is Dr. Sai Satish and Dr. Bharat Rawat for your heart health, and then there is Dr. Lim for your liver health. These are the doctors that we have profiled, or you know, that we have had interviews with on my Instagram. So you can watch their interviews so that you can get better educated about all of these topics. I know this has been long, but I do hope that this has also been useful, informative, educational, and more importantly, liberating. Thank you very much for watching. Bye bye.